कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, तो मैं ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि 22 मार्च को अपने अपने महलों के मसाजिद में 5 वक्ता नमाज़ों के अलावा तौबा व इस्तग़फ़ार की महफ़िल। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मक़दम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कोरोना वायरस से आज मजीद 2 अफराद के मुतासर होने के ताज़ा वाक़यात के बाद रियासत में इस विभाग के पॉजिटिव केसेस की तादाद 18 हो गई है। इसी दौरान रियासती वज़ीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने आज मौके में सेहत के आलादारों के साथ एक इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया। కాబట్టి నేను ఆ లోతులకు పోను కానీ దీని తీవ్రతను గుర్తించి అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా కొంత అలర్ట్ చేసినమాట వాస్తవం. కాకపోతే ఆ తీవ్రతని ప్రభుత్వ ఆదేశాలని అక్కడక్కడ పట్టించుకొని ప్రజలున్న కాడ మాత్రం కొంత నష్టం జరిగింది. ఇవాళ చైనా నియంత్రించగలిగింది, థాయిలాండ్ నివారించగలిగింది, కానీ వేరే ఇటలీ అంత గొప్పగా ఎదిగినటువంటి దేశం ఇటలీ వాళ్ళ ఆదేశాలని చాలా తెలిసినటువంటి ప్రజలు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి ఆ బాధ ఏందో ఇవాళ అర్థమవుతా ఉంది. అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరంగా రండి మేడం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరంగా 31 డిసెంబర్ ఇది మొట్టమొదటిగా బయటపడ్డ నాడు. ఎన్నడో ఒకనాడు మనం పక్కకే ఉన్నాం కాబట్టి కొంత స్కోప్ ఉంటుందని చెప్పి మేముగా కొంత ప్రిపేర్నెస్ చేసుకున్నాం. కానీ 1 మార్చ్ ఒక కేసు ఐడెంటిఫై అయిన తర్వాత మాత్రం కొంత వేగవంతం చేసుకున్నాం. 2వ తారీఖు నాడు డిటెక్ట్ అయింది. 3వ తారీఖు నాడు అత్యున్నతమైనటువంటి సమావేశం పెట్టుకున్నాం మేము ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలతోటి. అప్పటి నుంచి మేము ఇక్కడ ఒక కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ పెట్టుకొని అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. అవన్నీ కూడా మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడు కూడా ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ సందర్భంలో అని చెప్పి గుర్తించుకొని ఇవాళ డాక్టర్లు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎన్ని హాస్పిటల్ ఉన్నాయి, ఎన్ని బెడ్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని ఐసీయూలు ఉన్నాయి, ఎన్ని ఐసోలేషన్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి, ఎంతమందిని మనం క్వారంటైన్ చేయగలము, అదంతా కూడా మేము అసెస్ చేసుకున్న వాస్తవం. అసెస్ చేసుకొని మేము అనుకోలేదు ఏంటంటే మనలాంటి దేశానికి మనలాంటి రాష్ట్రాలకి ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ కంటే కూడా ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అని చెప్పి గుర్తించుకొని మేము సెన్సిటైజ్ చేయడం అనేది మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో ఎంత డాక్టర్లున్నా, ఎన్ని మందులున్నా, ఎంత డబ్బున్నా ప్రజలు దాన్ని అర్థం చేసుకొని అడాప్ట్ చేసుకోకపోతే, ఆచరించకపోతే వచ్చే పరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉండేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ప్రజల్ని సెన్సిటైజ్ చేసే విషయంలో, ఆ ప్రజల్ని సమాయత్తం చేసే విషయంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ దేశంలోనే ముందు బాగా నిలబడ్డ విషయాన్ని మనం కాదు, కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు కూడా మనం అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ మనకు కొన్ని కలిసి వచ్చే అంశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటిదాకానే ఆనందంగా మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు మా డిఎంఈ గారు, మా డిహెచ్ గారు అంటున్నారు, జనరల్గా ఈ ఫ్లూ, ఇట్లాంటి ఫ్లూ ఏదైనా కూడా కొంత కోల్డ్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో స్ప్రెడ్ అవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. లో టెంపరేచర్స్లో ఎక్కువ బతికే ఆస్కారం ఉంటుంది. హై టెంపరేచర్స్లో జనరల్గా ఈ బతికే ఆస్కారం లేదు. మనకు కలిసి వస్తుందేమో అని మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. డెఫినెట్గా కలిసి వస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ క్షణానికి ఈ గడ్డ మీద తెలంగాణ బిడ్డకి ఒక్కరికి కూడా ఈ వైరస్ రాలేదు. అందరికందరూ లండన్లోనో, స్కాట్లాండ్లోనో, నెదర్లాండ్లోనో, దుబాయ్లోనో, ఇటలీలోనో, ఇట్లా ఇతర దేశాల్లో అక్కడ వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అయ్యి వాళ్ళకు మైల్డ్గా ఉండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత టెస్ట్ చేస్తే బయటపడ్డ విషయం తెలుసు. ఇలా 17 మందికి ఒకటే దాంట్లో మనకు ఇండోనేషియా నుంచి వచ్చిన ఒక టీం, దానివల్ల మన సంఖ్య పెరిగింది. కానీ లేకపోతే మన దగ్గర పెద్ద సంఖ్య కూడా లేకుండే.
నేను ఒకటే మీ అందరికీ నా విజ్ఞప్తి, ప్రజల్ని సెన్సిటైజ్ చేయడంలో, ప్రజల్ని అర్థం చేయించడంలో మీ పాత్ర గొప్పగా ఉంటుంది. డాక్టర్గా చెప్తే బాగుండే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎక్కడికక్కడ మీరు మీ ఐఎంఏ మొత్తం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉంటుంది కాబట్టి మండల స్థాయి. अमेरिका के सबसे बड़े रियल स्टोर वॉलमार्ट ने कोरोना वायरस के बहरान के दौरान काम करने वालों की मांग में इजाफे के पेश नजर 1.5 लाख मजीद लोगों को भर्ती करने का ऐलान किया है। वॉलमार्ट के सीईओ डॉग मैकमिलन ने बताया कि ये भर्तियां आरजी होंगी और उन्हें बाद में मुस्तकिल किया जाएगा। मुस्तकिल मुलाजिमीन को $300 और पार्ट टाइम करने वालों को $150 बोनस भी दिया जाएगा। इंटरनेट शॉपिंग करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन ने भी उसे मिलने वाले ऑर्डरों के इजाफे के बाद मजीद 1 लाख अफराद को नौकरियां देने का ऐलान किया है। फिरके महदविया की बुजुर्ग शख्सियत सिराज मिल्लत हजरत मौलाना सैयद हसन शाह महदवी के फर्जंद और जानशीन हजरत सैयद महमूद शहाबुद्दीन काशिफ मियाँ ने मरकजी अंजुमन महदविया के मुजवजा सदारत इंतखाबात में अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है और खबी इम्कान है कि उनका बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आ जाएगा। आज बाद नमाज जुमा मस्जिद मौली साहब चंचलगुड़े में इस ऐलान पर उनके मुरीदीन और मुतखदीन में खुशी की लहर दौड़ गई। सैकड़ों लोगों ने काशिफ मियाँ की गुलपोशी की और उन्हें पेशगी मुबारकबाद दी। गुलपोशी करने और मुबारकबाद देने वालों में हज़रत अबू तुराब सैयद अली मसूद, हज़रत सैयद नुसरत इफ्तिखार, हज़रत सैयद मोहम्मद मेहदी, शफाअतुल्लाह खान एडवोकेट, सैयद राज मोहम्मद, बशीर बुखारी, मेरा दिलदार खान, इकबाल इंजीनियर और दूसरे काबिल जिक्र हैं। करीमनगर में मौजूद तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 8 इंडोनेशियाई बाशिंदों के कोरोना वायरस से मुतासर होने की खबर आम होने के बाद कल रात पूरे शहर में सरासमगी फैल गई और जिला इंतजामिया ने अवाम पर जोर दिया कि वो गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर न निकले। इंडोनेशियाई ग्रुप जिला कलेक्ट्रेट के करीब एक मस्जिद में मुकीम था और गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान उसने इलाके में मुतादिद लोगों से मुलाकात की। उन्हें बाद में हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने भी शहरियों पर जोर दिया कि वो अहमदिया मस्जिद, मुकरमपुरा और भरतनगर जैसे इलाकों से दूर रहें जहां लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया है। वज़ीर पसमानदा तबक़ात जी कमलाकर ने शहरियों के फैसले को हौसला अफजा करार दिया। उन्होंने अहदेदारों के साथ घर घर सर्वे में भी हिस्सा लिया ताकि पता चलाया जा सके कि आया कोई कोरोना वायरस से मुतासिर तो नहीं है। जीएसएमसी के हुक्काम ने आज अपने मरकजी ऑफिस डायमंड पर साफ सफाई की मुहिम बड़े पैमाने पर चलाई। बाबू दाखिला और अहदेदारों के चैम्बर के सामने दवाओं का छिड़काव किया गया, लेकिन सफाई अमले को दफ्तर के अगबी हिस्से में साफ सफाई की तौफीक नसीब नहीं हुई। हर तरफ कचरा और कागजात और फाइल का अंबार पड़ा हुआ है। अब अगर बल्दिया के दफ्तर और उसके अगबी हिस्से का ये हाल है तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि शहर का क्या हाल होगा। पुलिस अनंतनगर ने एरागड्डे के मशहूर रैतू बाजार को 6 हफ्तों के लिए बंद करवा दिया है, जिससे ताजरीन और मकामी अवाम को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अवाम ने सवाल किया कि अगर बाजार ही बंद कर दिए जाएं तो लोग फिर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए कहाँ जाएं। रियासती हुकूमत ने शॉपिंग मॉल, बाजार और दुकानात को खुला रखने के अहकाम जारी किए। इंस्पेक्टर सनतनगर चंद्रशेखर रेड्डी का कहना है कि मफाद आमा की खातिर ऐसा किया जा रहा है और पुलिस के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने किए जाएंगे। చెప్పండి సార్। ये सनत नगर, मैं सनत नगर इंस्पेक्टर हूँ। ये सनत नगर एरागड्डा में हर हफ्ता बोल तो संडे बड़ा मार्केट चलता है पब्लिक का। वो मार्केट ये 6 वीक्स पूरा बंद करने का पहले संडे में सबको दुकानदारों को बोला है। ये कोरोना वायरस का इफेक्ट होता बोल के पब्लिक हेल्थ सेफ्टी के लिए हम लोग बंद करा रहे। पहले भी संडे बोला पूरा को दुकान वाला को पब्लिक भी बोला है हर दुकान को नहीं रखना बोल के। फ्यूचर में कल 22 संडे है, वो संडे और नेक्स्ट 6 वीक्स तक कोई दुकानदार नहीं आना है एरागड्डा मार्केट को आके दुकान नहीं रखना है, पब्लिक भी नहीं आना है। ये कोई आए तो भी हम लोग नहीं रखाना देते। ये कोरोना वायरस एंड पब्लिक हेल्थ सेफ्टी के लिए ये कर रहे हैं, सबको कोऑपरेट करना है।
सर कितने वीक्स तक ऐसा बंद रहेगा सर? 6 वीक फिर इन्फॉर्मेशन कैसा है उनको? 6 वीक तक बंद कराएगा और कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन 6 वीक के बाद कुछ ये कोरोना का इफेक्ट कम है तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम दे देते सर। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में आज चिड़ियों का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर जू में चिड़ियों के लिए लकड़ी के 50 नए घरौंदे नस्ब किए गए। क्यूरेटर जू पार्क एन कस्टीजा ने चिड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पर जोर दिया और आवाम से अपील की कि वो अपने घरों की बालकनियों, खिड़कियों और छतों पर उनके लिए दाना पानी का इंतजाम करें। सरकारी असातिज़ा ने आज कोरोना वायरस के पेश नज़र SSC इम्तिहानात के पर्चों की तनखी का काम मुलतवी करने का मुतालबा किया और अपने मुतालबे को मनवाने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गनफाउंड्री पर धरना भी दिया। उनका कहना है कि पर्चों की तनखी के लिए 2000 से ज़ायद टीचर्स की खिदमत हासिल की गई हैं और ऐसे में वो वबाई मर्ज का शिकार हो गए तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मौके में तालीम के आला अहदेदार ने कहा कि पर्चों की तनखी का काम मुलतवी नहीं किया जा सकता, अलबत्ता सूरत हाल के बिगड़ जाने की सूरत में इसे मुलतवी किया जाना मुमकिन है। అండి ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్లో స్పాట్ వాల్యుయేషన్ ఇంటర్మీడియట్ పేపర్ కరెక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. సంస్కృత్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అందరూ మేము పెన్ డౌన్ చేసేసి వచ్చేసాం బయటికి. సో మాకు ప్రొటెక్షన్ కావాలి. ఇది చాలా సివియర్ మ్యాటర్, కరోనా డిసీజ్ కాబట్టి మేము దీని గురించి పోరాడుతున్నాము. వాళ్ళేమో 15 డేస్ మీరు చెయ్యండి, సివియర్ కేసు వచ్చిన తర్వాత చూద్దాము, ఆఫ్టర్ 15 డేస్ కేసు సివియర్ అయిన తర్వాత మీరు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు అంటున్నారు. ఆ లోపు మేము వచ్చే 2000 మందిలో ఎవరికైనా ఎఫెక్ట్ అయితే హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్? వాళ్ళేమో మేము కేర్ తీసుకుంటున్నాము, శానిటైజర్ అవి ఇవి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అంటున్నాం కానీ సో క్రౌడ్ ఉన్న దగ్గరే వెళ్ళొద్దు అనేసి అన్ని షాపింగ్ మాల్స్, అన్ని కాలేజెస్ అన్ని ఇది బంద్ చేసిన తర్వాత స్పాట్ వాల్యుయేషన్ కూడా మేము కొంచెం టైం అడుగుతున్నాము. అట్లీస్ట్ అప్ టు 31st యూ గివ్ అస్ టైం. ఆ తర్వాత కొంచెం డిసీజ్ అంతా క్యూర్ అయిపోతే ఇంక గవర్నమెంటే మాకు హాలిడేస్ ఇచ్చింది కాలేజ్ కంటే, మీరు కూడా కొంచెం మాకు సపోర్ట్ చేయండి అని అడిగాము. సో వాళ్ళేమో సుపీరియర్స్ అయితే 5 వరకు చూస్తాము, మేమైతే నోటీస్ పంపించాము, ఇంకా కమిషనర్ గారు ఏం మాట్లాడలేదు, ఒపీనియన్ తీసుకునేంతవరకు ఆగండి అంటున్నారు. సో ఇఫ్ ద రైట్ డెసిషన్ ఇస్ టేకన్ వెల్ అండ్ గుడ్, ఇఫ్ నాట్ వీఆర్ ఆల్ ఇన్ ఎ యూనిటీ పొజిషన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, నాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, ఎవ్రీ వన్ ఆర్ గోయింగ్ టు come out of spot valuations, and even we want a delay because we want our health to be cured. So we want a safe life here rather than the payment which they give. So we are not worried about the payment or the fine which they are going to produce. But the thing is, maku kavalsindi, we are faculty. We are faculty of English department and other subject faculties are also supporting. Mathematics, civics as well as Sanskrit also came down. So all subjects have been pen down, sir. So మేము pen down చేసేసాము. సో చాలా మంది చాలా బాగా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు బికాస్ ఆఫ్ కరోనా. సో JEE means NEET అవే పోస్ట్పోన్ అయిపోయి 10th also is going to postpone, sir. So we want our spot valuation to be postponed at least for few days. సో మరీ హద్దు మీరి క్యూర్ డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత దాని క్యూర్ అంటూ ఏమీ లేదు. సో ఒక్కరు సఫర్ అయితే పక్కన 10 మంది కూడా సఫర్ అవుతారు. సో మాకు బాగానే క్రౌడ్ ఉంటుంది. మీరు చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఏం ప్రాపర్గా నీట్గా లేదు కూడా. శానిటైజేషన్, ప్రొటెక్షన్ అంటున్నారు కానీ యూ కెన్ సీ ద క్యాంపస్, ఇట్స్ నాట్ ప్రాపర్లీ హైజీనిక్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద థింగ్ ఇస్. ऑल इंडिया उलमा काउंसिल ने इतवार 22 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मौलाना जनता कर्फ्यू की तायद का ऐलान किया है। काउंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने अवाम से अपील की कि वह इतवार को घरों में ही रहें और नवाफिल अदा करें, तौबा व इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से ही उसका फजल तलब करें। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ही मसाइब और विबाओं को दूर करने वाला है और उसी की ज़ात पर पूरा यकीन होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि हम ये बात बखूबी वाकिफ़ है कि 22 मार्च को कौमी कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, तो मैं ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की जानिब से मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि 22 मार्च को अपने अपने महलों के मसाजिद में 5 वक्ता नमाज़ों के अलावा तौबा व इस्तग़फ़ार की महाफिल का इनेकाद अमल में लाए, आयत करीमा का विर्द करे। ये अल्लाह की तरफ से जो एक वबाई मोहलिक मर्ज़ फैल रहा है, हमारे हिंदुस्तान में दाखिल हो चुका है, इस मर्ज़ से नजात के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करें और शब मेराज को खुसूसी तौर पर नौजवान बच्चे बाज़ारों में घूमने से परहेज़ करें और
एक रोज़ा एहतिकाफ का भी मसाजिद में एहतमाम करें और नफिल रोज़ों का एहतमाम करें। और मैं इंतज़ामी कमेटियों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी मसाजिद में सहर व इफ्तार का एहतमाम करते हुए इस मौके को जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है कि इस वक्त को हम अल्लाह की इबादत और उसके सामने सरबर सुजूद होकर इन हालात से नजात के लिए दुआ फरमाएं। और हमको किसी सऊदी अरब या क़तर या कुवैत के किसी जो है ना ऐलान से हमको इत्तेफाक करना नहीं है। अल्लाह की जानिब से खैर व शर का मामला होता है और अमराज आना है तो किसी हाल आता है। इससे जो है ना हमको मसाजिद से दूर होने की क़तई ज़रूरत नहीं है। 5 वक्ता नमाज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा मसाजिद में नमाज़ें अदा कीजिए और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए और शब मेराज को आप मसाजिद में जो है ना गुजार कर अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार के लिए दुआ फरमाइए। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से ये अपील की जा रही है। देखिए क्या, जैसा कि अभी मैंने कहा है कि खैर और शर का मामला अल्लाह की तरफ से है और घर में बैठने से भी अमराज आ सकते हैं और इस बीमारी से सबसे बड़ा इसका ताल्लुक़ ईमान से है। किसी मुसलमान का ईमान जब मुस्तहकम होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत पर भी शुक्रिया अदा करता है और उसके तरफ से मुसीबत पर भी शुक्रिया अदा करता है। कुरान इस बात की शाहिद है, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुई व नक्सिम मिनल अमवालि वन अनफुसि वस्समरात। और कहा गया है वबश्शिरिस साबिरीन, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से बुशारत है। तो यहाँ पर मसाजिद से दूर रहना ये इस्लामी शियार नहीं है, ये ईमान का तकाजा नहीं है। अगर कोई अपनी तरफ से कोई मस्जिद को ना आता हो वो उसका अपना अमल है, लेकिन कौमी सतह पर यह बात कहना कि मुसलमान मस्जिद से दूर रहे ये खतई शरन जो है ना बात दुरुस्त नहीं है। और जामे निज़ाम ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि मसाजिद में दाखिल होने जाने के से रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ना जाता हो तो कोई खबात नहीं है, लेकिन इस्लामी नुक्ते नज़र से ईमान का तकाजा यही है कि अल्लाह ताला के बारगाह में सरबर सुजूद हो और अल्लाह के घरों को आबाद करें। अगर अल्लाह के घरों को आबाद नहीं करेंगे तो आगे ऐसे भी हालात पैदा हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद मोहम्मद हिलाल आज़मी, नायब सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल, एडिटर सदाए शिबली, महानामा हैदराबाद। मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों से और बिलखुसूस मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो कुछ भी बीमारी जो इस वक्त मुल्क में और पूरी दुनिया में फैली हुई है, जैसा कि कुरान कह रहा है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, कि जो कुछ भी बीमारी का वजूद होता है या जो कुछ भी मुसीबत पहुंचती है वह तुम्हारे अमाल का नतीजा हुआ करती है और अल्लाह ताला बहुतों को तो दरगुज़र फरमाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ वग़ैरह में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और इस तरह दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से ये बातें मरवी हैं कि तकरीबन 142 के करीब कि ऐसा ज़माना आएगा कि इस तरह होगा इस तरह होगा। वो सारी अलामतें जैसे शराब पी जाना, इसी तरह गवर्नमेंट के माल को खा जाना और इसी तरह सूद खाना, पहले लोगों को बुरा भला कहना, माँ बाप की नाफरमानी करना और इसी तरह वउक्रिम रजुलु मखाफत मिन शर्रिही, कि एक आदमी की ताज़ीम की जाएगी उसके शर की खौफ की वजह से। तो इस तरह की चीज़ें बुराइयाँ मुआशरे और समाज में पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियाँ अल्लाह के अज़ाब की शक्ल में दुनिया के लोगों के ऊपर आ रही हैं। अब दुनिया वालों का तकाज़ा ये है कि अपने अमाल को दुरुस्त करें और अमाल को जब दुरुस्त करेंगे तो यकीनन सारी चीज़ें जो है हट जाएंगी। तो अमाल को दुरुस्त करने के लिए हमें अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए। जैसा कि हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई हालात आते या कुछ भी होता है तो मस्जिद की तरफ रुजू होते और जाकर मस्जिद में और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अल्लाह से याद करते, दुआ करते, इस्तिग़फ़ार करते। इस वजह से बरोज़ इतवार ये जो 22 मार्च को
कौमी सतह पर जो कर्फ्यू का ऐलान किया गया है उसकी तायद करते हुए तमाम मुसलमानों से और तमाम हिंदुस्तानियों से ये गुजारिश की जाती है कि वो लोग अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें, जो हमारा खालिक और मालिक है। हम जो जुर्म कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, जो माशी तौर पर, अखलाकी तौर पर, इक्तसादी तौर पर, वो सारे गुनाहों से हम अपने आप को बचाएं। इस वजह से मैं गुजारिश करता हूं कि सभी लोग बरोज़ इतवार को अपने अपने घरों के अंदर, मसाजिद के अंदर और इसी तरह 5 वक्त नमाज़ों में यौम तौबा और दुआ और इस्तिग़फ़ार करें, ताकि अल्लाह ताला हमें इन मसाइब से, इन परेशानियों से हमारी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। शुक्रिया। कोरोना वायरस के पेश नज़र तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में आने जाने वालों के लिए हाथ पांव धोने का इंतजाम किया गया है। मुलाजिमीन और अहले गर्ज वहां रखी गई सहूलत से इस्तेफादा कर रहे हैं। కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదేశాలు అనుసరించి పిఎస్పిఎస్సీలు కూడా చాలా వరకు మన వంతు కర్తవ్యం ఏంటంటే కొన్ని గుడ్ ప్రాక్టీసెస్, హ్యాండ్ వాషింగ్ అనేది కానివ్వండి, లేదా యూజ్ ఆఫ్ శానిటైజర్, లేదా మనం కామన్గా యూజ్ చేస్తున్న కామన్ యూటిలిటీ ప్లేసెస్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచడం, ఇటువంటి అంశాల మీద మన వంతు మన కర్తవ్యం ఏమిటి అనేది మన స్టాఫ్ ద్వారా కానివ్వండి, లేదా మా దగ్గరకు వచ్చే ప్రతిరోజు వచ్చే ఆఫీసర్స్ కావచ్చు, వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్స్, క్యాండిడేట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళందరికీ కూడా అదొక ఇట్స్ అ కామన్ ప్రాక్టీస్. మనందరికీ ఒక బాధ్యత అనేటువంటి ఒక ఆలోచన కల్పించే విధంగా హ్యాండ్ వాషింగ్ కావచ్చు, లేదా శానిటైజర్ అనేది ఏదో ప్రభుత్వమో లేకపోతే మాస్క్స్ కానీ శానిటైజర్స్ కానీ ప్రభుత్వం మీదనో లేకపోతే ఓపెన్ మార్కెట్ మీద మాత్రమే ఆధారపడకుండా మనము ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చు అనేది మా ఆనరబుల్ మెంబర్ అండ్ మా ఆనరబుల్ చైర్మన్ గారి సూచనల ప్రకారం సిబ్బంది ఇక్కడ తయారు చేశారు స్వయంగా, దాన్ని వినియోగించడం. దీని ద్వారా ఏంటంటే ఒక మెసేజ్ టు ఎవ్రీవన్ దట్ ఇది ఒక గుడ్ ప్రాక్టీసెస్ని మనం అందరం కూడా ఒక కనీస బాధ్యతగా వీటిని నిర్వర్తించాలి అనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తాం. हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कोरोना वायरस के चलते विजयवाड़ा में दरिया कृष्णा के साहिल पर वाक़े कनका दुर्गा मंदिर को यात्रियों के लिए बंद कर दिया है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मंदिर कमेटी के चेयरमैन स्वामी नायडू ने बताया कि अलबत्ता रोज के मरासिम पुजारी मंदिर के अंदर ही अंजाम देंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें। यहाँ बताना जरूरी हुआ कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने मशहूर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के बशमूल कई मनादिर को 31 मार्च तक बंद कर दिया है। 7 साल कबल दिल्ली इज्तिमाई अस्मत रेजी के 4 मुलज़िमीन को आज सुबह तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। ट्रायल कोर्ट ने मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह को निर्भया की अस्मत रेजी का मुजरिम करार पाते हुए मौत की सजा सुनाई थी। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि बिल आखिर आज इंसाफ मिला है। उन्होंने कहा कि वह खवातीन की इज्जत और हिफाजत को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। मध्य प्रदेश में शदीद सियासी बहरान के दौरान चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने आज रियासती गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। कबल अज़ीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो नंबरों के गेम में नाकाम हो गए हैं, चुनाचे उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बदस्तूर आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। वाज़ेह है कि कांग्रेस के 22 अरकान असेंबली ने पार्टी से बगावत करते हुए कमलनाथ हुकूमत की ताई से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी और फिर पार्टी से भी मुस्तफी हो गए थे। उन्हें समझाने बुझाने की तमाम तर कोशिशें रायगां हुई। ये 22 अरकान असेंबली साबिक मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के हामी बताए जाते हैं, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रामचंद्रपुरम मंडल के तेलापुर म्यूनसिपैलिटी में 10वीं जमात के एक तालिबा ने कोरोना वायरस का शिकार हो जाने के खदशे के तहत 10वीं जमात के इम्तिहानात में शिरकत ही नहीं की। 15 साल लड़की दुर्गा भवानी की गैरहाजिरी पर उहदेदारों ने मालूमात की तो पता चला कि उसने कोरोना वायरस के डर से इम्तिहान में शिरकत करने से इनकार कर दिया। बादेजा उसे समझा बुझाकर इम्तिहान हाल को लाया गया, जहां उसने 1 घंटे की ताखीर से अपना पर्चा लिखा। लड़की ने बताया कि उसके मालिक मकान ने उससे कहा था कि वो घर के बाहर न निकले, चुनाचे उसने इम्तिहान में गैर हाजिर होने का फैसला किया। बताया जाता है कि ये लड़की जिला परिषद हाई स्कूल की तालिबा थी। रेलवे की खातून मुलाजिमीन को बैरून मुल्क से वापस होने वाले अपने बेटे को, जिसमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था, रेलवे गेस्ट हाउस में ठहराने पर मुअत्तल कर दिया गया है। साउथ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर AK सिंह ने बताया कि लड़का 13 मार्च को
स्पेन से होते हुए जर्मन से बेंगलुरु वापस हुआ था। उसे शाशंबे की रात को एम्बुलेंस के जरिए शहर के एक मखसूस दवाखाने को ले जाया गया था। खातून मुलाजिम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी और उसे मुअत्तली की मुद्दत के दौरान शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। रेलवे के गेस्ट हाउस को मोहरबंद कर दिया गया है। खातून मुलाजिम को भी खुसूसी वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है। उसके साथ काम करने वाले तमाम साथी मुलाजिमीन की स्क्रीनिंग की जा रही है। महाराष्ट्र में मजीद 3 अफराद में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद रियासत में ऐसे मरीजों की तादाद 52 हो गई है। वजीर सेहत राजेश टोपे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नए केसेस का मुंबई, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में पता चला है। कल रात तक जुमला 49 केसेस रजिस्टर किए गए थे, जबकि एक शख्स मुंबई में इस हफ्ते के अवाइल में फौत हो गया। राजेश टोपे ने बताया कि जिन 15 अफराद में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था उनका इलाज मुकम्मल हो गया है। इसका मतलब यह है कि इस मर्ज का कामयाब इलाज हो रहा है। वज़ीर सेहत ने बताया कि हुकूमत 19 मरीजों के इलाज मुआवजे के अखराजात महात्मा ज्योतिबाई फुले आरोग्य योजना के तहत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इतवार को जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाएं और खुद को घरों में बंद रखें। गुजरात में कोरोना वायरस के 3 नए केसेस का पता चलने के बाद अब उनकी तादाद 5 हो गई है। सरकारी अहदेदारों के मुताबिक इन 2 नए केसेस में एक का ताल्लुक अहमदाबाद से और दूसरा वडोदरा से है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ जयंती रवि ने बताया कि अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाले 2 खवातीन और वडोदरा का मर्द शख्स हाल ही में बैरून मुल्क से वापस हुआ है। गुजरात के शहर राजकोट और सूरत में भी जुमेरात को 2 नए केसेस का पता चला है। इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 3,400 से ज्यादा हो गई है, जबकि चीन में जहां से यह मर्ज शुरू हुआ मरने वालों की तादाद 3,250 बताई जाती है। CNN ने इटली के अहदेदारों के हवाले से बताया कि पूरे यूरोप में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 41,000 हो चुकी है। स्पेन में 17,147 के मुजमला 767, फ्रांस में 10,000 के मुजमला 372 अमवात हुई हैं। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कोरोना वायरस से निपटने और एहतियाती इक़दाम के बारे में अवामी शऊर की बेदारी के लिए एक मुहिम शुरू की है। उन्होंने हकीमपेट में आज लोगों में मुफ्त मास्क और साबुन तकसीम किए और साफ सफाई की जरूरत पर जोर दिया। नंदन नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दूसरे मजलिसी कायदीन भी उनके साथ मौजूद थे। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रमेश कुमार को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की सियानत फराहम की है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि मौजूदा बल्दी इंतखाबात के पेश नजर रमेश कुमार को धमकियां वसूल हो रही थी। चुनाचे उन्होंने मरकज से सियानत तलब की थी और बताया था कि उनकी जान को खतरा लाक है। किशन रेड्डी ने कहा कि बल्दी इंतखाबात अगरचे के एक रियासती मामला है, लेकिन जब हालात इस तरह के हो जाएं तो मरकज खामोश नहीं रह सकता। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।